Very good morning, guys. Once again, I, Dr. Rahul Mishra, welcome you all in my YouTube channel. So, as we are dealing with the subject engineering drawing and we have completed the topic scales, now we are continuing with curves. Okay, to be more specific, engineering curves. And we have started the topic conic sections, and on conic sections, presently we are doing with ellipse, isn't it? So, now in the previous video lecture which I have uploaded, on that lecture I have shown you different type of conic sections, in which I have said that circle is the simplest type of conic section and three different types of conic sections are ellipse, parabola and hyperbola. And how to draw ellipse, there are different methods, four different methods: general method, oblong method, arc circle method and concentric circle method. In which general method is totally different method, where you have been given with the eccentricity, okay, the focus, vertex, directrix, all these distance are given to you and eccentricity will be given to you. Then by seeing that, you will be able to analyze that this question is to be cracked with the help of general method. Other three methods are oblong method, concentric circle method and arc circle method. In these three methods, you will be given with the major axis and minor axis of the ellipse. Okay, so we have done with the general method. Now we will see how to solve numericals of arc circle method. Okay, arc circle method. As I have said that you will be given with the major axis and minor axis. Let us assume that major axis is 150 mm, minor axis is 100 mm. Okay. Now, once you know the major axis, draw major axis horizontally. So 150 mm means 15 centimeter. You have to draw a line of 15 centimeter and you have to mark the center. So 15 divided by 2 is 7.5. At 7.5 centimeter you mark the center. This is A, this is B and this is O. From O, draw a vertical line perpendicular. This line is perpendicular to AB. The minor axis is 100 mm, means 10 centimeter. So you have to mark 5 centimeter vertically upward and 5 centimeter vertically downward. So this will be a minor axis. This is C, this is D. So these are the four different points from which your ellipse will be passing. Keep it in mind that through major axis and minor axis your ellipse will definitely pass, or else you have done something wrong. Okay, so means these are the 4 points of your ellipse, A, B and C, D. Rest all points you have to locate. So now how you will be locating these points? First you take OA as radius in your rounder. Measure the arc equal to OA. जितना OA है उतना radius of rounder में ले लीजिए. Then keep your rounder at point C and cut an arc over here and here. This will be F1 and this will be F2. ठीक है? So OA is equal to OB is equal to CF1 is equal to CF2. ये आप याद रखने के लिए कि CF1 का डिस्टेंस कितना है OA के बराबर या OB के बराबर, एक ही है दोनों. तो उतने CF1 है उतने CF2 आपने आर्क काट दिया. ठीक है, ये हो गया आपको F1 F2 मिल गया. नाउ यू हैव टू डिवाइड दिस OF1 एंड OF2 इन n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स. सो ज्यादा मत करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा. 3 पार्ट 4 पार्ट आप करेंगे, इट इज मोर देन इनफ. ठीक है, 4 पार्ट से ज्यादा मत करिएगा, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ. सपोज यहाँ से मैं एक एक्यूट एंगल खींचा, यहाँ राउंडर रखा O पे, कोई भी एक आर्क मेजर कर लिया अपने राउंडर में, कितने का भी O पे राउंडर रखिए. 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपको 3 आर्क काटना है. एक आर्क, फिर यहाँ रख के दूसरा आर्क, फिर यहाँ रख के तीसरा आर्क. लास्ट वाले को लास्ट पॉइंट से जोड़ दीजिए. इसके पैरेलल यहाँ से और यहाँ से देखिए 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए. सिमिलरली इसके लिए भी ऐसे कर दीजिए. एक एक्यूट एंगल का बना लीजिए, O पे रखिए, एक आर्क काटिए, यहाँ पे रखिए दूसरा आर्क, यहाँ पे रखिए तीसरा आर्क. लास्ट वाले को F2 से जोड़ दीजिए, इसके पैरेलल ही है और ये बना दीजिए. ये भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए. अब आपने यहाँ पे देखिए नेमिंग कैसे करना है. F1 के बाद अगर यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ आपने लिखा 2, तो यहाँ भी F2 के बाद आप लिखेंगे 1 डैश और यहाँ लिखेंगे 2 डैश. अगर F के बाद 1 लिखे हो तो यहाँ भी F के बाद 1 लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा. तो ये मेरा 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. अब क्या करना है देखिए, एकदम सिंपल.
ए पे राउंडर रखेंगे, 1 तक रेडियस लेंगे, ए वन रेडियस लेंगे, F1 पे रख के, मतलब आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप ए से कुछ भी मेजर कर रहे हैं तो उसको आप F1 पे रख के काटेंगे, और अगर आप बी से कुछ भी मेजर कर रहे हैं उसको आप F2 पे रख के काटेंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो मैंने A1 मेजर किया, F1 पे रख के ऊपर नीचे 2 आर्क काट दिए। सिमिलरली A2 मेजर किया, F1 पे रख के ऊपर नीचे 2 आर्क काट दिया। फिर मैंने B1 मेजर किया, F2 पे रख के ऊपर नीचे 2 आर्क काट दिया। B2 मेजर किया, F2 पे रख के ऊपर नीचे 2 आर्क काट दिया। आधा इलिप्स का पॉइंट मिल गया आपको। सिमिलरली A2 डैश मेजर करेंगे, F1 पे रख के ऊपर नीचे 2 आर्क काट देंगे। A1 डैश मेजर करेंगे, F1 पे रख के ऊपर नीचे 2 आर्क काट देंगे। फिर B2 डैश मेजर करेंगे, F2 पे रख के ऊपर नीचे 2 आर्क काट देंगे। B1 डैश मेजर करेंगे, F2 पे रख के ऊपर नीचे 2 आर्क काट देंगे। एज सिंपल एज दैट। A से आप कुछ भी मेजर कर रहे हो, F1 पे रख के काटोगे। B से आप कुछ भी मेजर कर रहे हो, F2 पे रख के काटोगे। A1 मेजर किया, F1 पे रख के यहाँ ऊपर नीचे आर्क काटा। इसको बंद करने के लिए मैंने B1 मेजर किया, F2 पे रख के ऊपर नीचे आर्क काट दिया। 2 पॉइंट मिल गए। सिमिलरली A2 मेजर किया, F1 पे रख के ऊपर नीचे आर्क काटा यहाँ। इसको बंद करने के लिए B2 मेजर किया, F2 पे रख के ऊपर नीचे आर्क काट दिया। A2 डैश मेजर किया, F1 पे रख के ऊपर नीचे 2 आर्क काटा। B2 डैश मेजर किया, F2 पे रख के ऊपर नीचे 2 आर्क काट दिया। A1 डैश मेजर किया, F1 पे रख के ऊपर नीचे 2 आर्क काटा। B1 डैश मेजर किया, F2 पे रख के ऊपर नीचे 2 आर्क काट दिया। एज सिंपल एज दैट। अब ये पॉइंट्स मिल गया आपको, मैंने सिखाया था। आप दिमाग में रखेंगे कि इलिप्स कैसा बनता है, ऐसा रहता है। ये ऐसा नहीं बनाते, ये गलत हो जाएगा। कोना ऐसा स्मूथ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये इलिप्स का एक्चुअल शेप है, आप ध्यान रखेंगे उसको। तो आप पहले तो डॉटेड लाइन से, हल्का डॉटेड लाइन से ऐसे करते रहिए। ठीक, ये कुछ हल्का इलिप्स टाइप का दिख रहा है आपको। उसके बाद इसको वो डॉटेड लाइन जो आपने बनाया उसको डार्क कर दीजिए। ठीक है, ये पॉइंट्स को आप एनसर्कल कर दीजिएगा ऐसे, जो जो पॉइंट्स मिले आपको। ये बन गया आपका, देखिए कितना इजी है। आर्क सर्कल मेथड से इलिप्स बन गया। और बनने के बाद जैसे बन जाएगा तो आप उसके बाद अप्सरा डार्क पेंसिल लेंगे और उसको एक बार चला देंगे इसको, क्योंकि आपका ये इलिप्स ही बस डार्क दिखना चाहिए, बाकी पूरा एकदम हल्का होना चाहिए, लाइट। योर मेन फिगर इज इलिप्स, दैट शुड बी डार्क, रेस्ट ऑल थिंग्स शुड बी लाइट। ये बन गया आपका इलिप्स। ठीक है, तो ऐसा बनाते हैं अपन किससे, आर्क सर्कल मेथड से। क्लियर? आर्क सर्कल मेथड मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या, नेक्स्ट मेथड क्या था, कंसेंट्रिक सर्कल मेथड। कंसेंट्रिक सर्कल मेथड, इसमें भी सेम वही है। मेजर एक्सिस 150 mm मान लो, माइनर एक्सिस 100 mm मान लो। ठीक, सिर्फ वैसे ही करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, मेजर एक्सिस ड्रॉ कर लेना है 15 सेंटीमीटर का, उसका सेंटर ले लेना है। ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया ओ। यहाँ से 5 सेंटीमीटर ऊपर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर नीचे। ये आपका हो गया सी, ये आपका हो गया डी। ठीक है, अब ये ए बी को रेडियस लेकर के, डायमीटर लेकर के एक सर्कल बनाओगे, और सी डी को डायमीटर लेकर दूसरा सर्कल बनाओगे। सेंटर कौन सा रहेगा, ओ। तो मैं ओ पे राउंडर रखा, ए तक रेडियस लिया और एक सर्कल बना दिया। ठीक है, सिमिलरली ओ पे राउंडर रखा, सी तक रेडियस लिया, दूसरा सर्कल बना दिया। इसलिए इसका नाम क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल मेथड। देखिए कंसेंट्रिक है, एक ही सेंटर है ना ओ, चाहे आप ये छोटा वाला सर्कल ले लो चाहे बड़ा वाला सर्कल ले लो, दोनों का सेंटर एक ही है ओ।
इसलिए इसका नाम क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल मेथड। अब इस सर्कल को आपको 8 इक्वल पार्ट्स या 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अगर आप 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो तो सर्कल टोटल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। 360 बाई 12 करोगे 30 डिग्री आएगा। अगर आप 8 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो तो 360 बाई 8 करना 45 डिग्री आएगा, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, मान लेते हैं अपन 12 पार्ट्स करते हैं तो 360, क्योंकि जितना ज्यादा पार्ट्स करोगे एक्यूरेट होगा, तो 12 पार्ट्स आप कर सकते हो इजीली। तो क्या करोगे, 30 डिग्री प्रोटेक्टर में यहाँ रखोगे, मान लीजिए आपका प्रोटेक्टर है, यहाँ पे रख दिए, यहाँ से आप मेजर करोगे कितना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 का डिफरेंस होगा ना, तो 30 हो गया, 60 हो गया, 90 तो है ही है 30 में, फिर उसके बाद 120, 150, 180, उतना ही नीचे होगा। तो ये पॉइंट्स आपको मिल गया एंगल का। तो आप क्या करोगे, वो एंगल का पॉइंट्स लेते हुए ये लाइन को इधर आगे बढ़ा दिए, ये लाइन को इधर नीचे बढ़ा दिए, ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पे इसको ऐसे बढ़ा दिए और इसको ऐसे नीचे बढ़ा दिए, फिर यहाँ से भी ऐसे इसको लेते हुए ऐसे आगे बढ़ा दिए, इसको लेते हुए इधर बढ़ा दिए, फिर यहाँ पे इधर और यहाँ से। क्लियर? तो ये आपका सर्कल 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब क्या करना है आपको, देखिए जो ये बाहर वाले पॉइंट्स कटे हैं सर्कल में, बाहर में जो पॉइंट्स कटे, देखो 4 पॉइंट तो पहले से है, ये ए बी, ये सी और ये डी, ये 4 पॉइंट तो पहले से है। ये थोड़ा सा गलत बन गया, ठीक है। तो एबीसीडी पहले से, बाकी पॉइंट्स आपको लेने हैं। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल देखिए, जो भी आप ध्यान रखिएगा, बाहर वाले सर्कल पे जो पॉइंट्स कटा है वहां से आपको वर्टिकल लाइन बनानी है, और उसी का करस्पॉन्डिंग जो अंदर वाले सर्कल के पॉइंट्स कटे हैं वहां से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। तो देखिए जैसे ये पहला वाला अपन एंगल लेते हैं, तो इसमें बाहर वाले सर्कल का पॉइंट ये है, अंदर वाले सर्कल का पॉइंट ये है, तो मैं यहाँ से, और दोनों इंटरसेक्ट होना चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा। ये एग्जैक्ट 90 डिग्री में होना चाहिए, ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल, देखिए मीट कर गया, यहाँ एक पॉइंट मिल गया आपको। सिमिलरली यहाँ से ये वर्टिकल, यहाँ से हॉरिजॉन्टल, दूसरा पॉइंट मिल गया, फिर यहाँ से वर्टिकल, यहाँ से हॉरिजॉन्टल, दूसरा पॉइंट मिला, ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल, एक और पॉइंट मिल गया, फिर यहाँ से इधर वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल मिल गया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मिल गया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मिल गया, वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ये मिल गया। ये सारे पॉइंट्स मिल गए। अब यहाँ से आपको ऐसी पहले हल्के लाइन से, डॉटेड लाइन से बना लेना। पेज बन गया। अब जैसे मिला उसको जोड़ दीजिए, ये बन गया, ये आपका एलिस बन गया। उसके बाद उसको डार्क कर दीजिए, कभी भी एलिस बनाओगे ध्यान देना, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस अगर पास नहीं हो रहा है तो आप गलत बनाए, मतलब ये ए बी और ये सी डी इससे पास होना जरूरी है। तो देखिए सारे पॉइंट्स को मिला के आपने एलिस बना दिया, कितना सिंपल है देखिए। तो ये हो गया कंसेंट्रिक सर्कल मेथड। यहाँ भी वही डेटा था आपके पास, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो क्वेश्चन में अगर आपको मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दिया रहे और मेथड ना बोला रहे तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर इसेंट्रिसिटी वगैरह दिया है, इसेंट्रिसिटी वगैरह अगर आपको गिवन है तो उस समय आपको क्या लगाना है, कौन सा मेथड लगाना है, जनरल मेथड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये दो मेथड जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटाऊंगा। एक मेथड और बचा है, ऑब्लॉन्ग मेथड, फिर इलिप्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं रब कर रहा हूँ ना।
गाइस ये चीज ध्यान रखिए कि जैसा अभी आपने इलिप्स को देखा, सेम वैसे ही जैसा इलिप्स बना था अपना, सेम वैसे ही आपको बनाना है क्या, पैराबोला और हाइपरबोला। सेम मेथड है, एग्जैक्टली सेम मेथड। बस क्या होता है, दो चार स्टेप्स कम, जैसे कंसेंट्रिक सर्कल मेथड हो गया, आर्क सर्कल मेथड हो गया, ये आपका पैराबोला में नहीं होगा, ऑब्लॉन्ग मेथड होगा, ठीक है। दूसरा कोई एक मेथड आ जाएगा, ऐसा करके 2-3 मेथड पैराबोला के लिए होगा, हाइपरबोला के लिए और कम मेथड। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मेथड्स किसके लिए है, इलिप्स के लिए। तो अपना कंप्लीट हो गया इलिप्स। अगला पैराबोला हाइपरबोला छोटा सा है, वो भी एक वीडियो और लेकर के उसको भी कंप्लीट कर देंगे, तो आपका कोनिक सेक्शंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स है वो देख लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन किस पे, इन्वॉल्यूट और साइक्लॉइड। इतना ही है आपके सिलेबस में, तो वो कंप्लीट करके फिर अपन मेन प्रोजेक्शन पे आ जाएंगे, जो आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर चीज है, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी निपटाएंगे। चलिए, अब अगला मेथड क्या था हमारा, ऑब्लॉन्ग मेथड। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ऑब्लॉन्ग मेथड में दो अलग अलग मेथड है। पहला मेथड क्या है, रेक्टेंगल मेथड, और दूसरा मेथड क्या है, पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। दोनों का प्रोसीजर एकदम सेम है, बस एक में रेक्टेंगल बनेगा, एक में पैरेललोग्राम बनेगा। यहां आपको मेजर एक्सिस वही सेम मान लेते हैं 150 mm, और माइनर एक्सिस 100 mm। यहां भी वही मान लेते हैं, मेजर एक्सिस 150 mm और माइनर एक्सिस 100 mm। यहां पे लेकिन पैरेललोग्राम के लिए आपको एंगल भी चाहिए, तो यहां इंक्लूडेड एंगल अपन मान लेते हैं 60 डिग्री। ये आपको 60 दिया हो सकता है, 120 भी दिया हो सकता है, ठीक है, जो मर्जी। तो अब मैं क्या करूंगा, रेक्टेंगल, एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर आप मेजर एक्सिस में आपको पता है, आपको माइनर एक्सिस पता है, इस पे अगर आप एक रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा वो मेजर एक्सिस के बराबर होगा, और रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ होगा वो माइनर एक्सिस के बराबर होगा, और एंगल दोनों के बीच में कितना होता है, 90 डिग्री। इसलिए यहाँ एंगल नहीं दिया। तो मैं जितना मेजर एक्सिस दिया है, जितना माइनर एक्सिस दिया है, उतना मैं लेंथ और ब्रेड्थ मान सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, 150 mm का मतलब 15 सेंटीमीटर का ये लाइन बनाया, फिर यहां से 90 डिग्री ऊपर बना दिया 10 सेंटीमीटर की लाइन। सिमिलरली यहां से ऊपर बना दिया 10 सेंटीमीटर की लाइन, फिर इसको जोड़ दिया, तो ये मेरा रेक्टेंगल बन गया। क्लियर। अब इस लाइन का मिड पॉइंट निकाल लो और ऊपर वाले का मिड पॉइंट निकाल लो, जोड़ दो। सिमिलरली इसका मिड पॉइंट निकाल दो, बाजू वाले का मिड पॉइंट निकाल लो और जोड़ दो। बन गया मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। यहां पे आप लिखोगे ए, ये बी, ये सी और ये डी। क्लियर। और ये सेंटर पॉइंट क्या है, ओ। अब फिर वही ओ ए ओ बी, इसको आपको मान लेते हैं 3 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं। कैसे करते हैं बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। 3 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर लिए, सिमिलरली इसको भी 3 इक्वल पार्ट्स। आप 4 में भी कर सकते हो। सिमिलरली ये जो बना है, अच्छा ये बी सी डी हो गया, इसको नाम दे देते हैं अपन ई एफ, ये जी और ये एच। सिमिलरली ए ई को भी 3 इक्वल पार्ट्स में करोगे, ए एच को भी 3 इक्वल पार्ट्स में करोगे, बी एफ को भी 3 इक्वल पार्ट्स में, और बी जी को भी 3 इक्वल पार्ट्स में। सबको आता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बार बार नहीं बताऊंगा। अब मान लेता हूं मैं a के बाद इसको नाम दिया 1 और इसको 2, तो यहां भी a के बाद ये आएगा 1, ये 2, a के बाद आएगा 1, ये 2। क्लियर। a के बाद 1 था, तो यहां b के बाद क्या आ जाएगा 1 डैश 2 डैश, यहां भी b के बाद 1 डैश 2 डैश, यहां भी b के बाद 1 डैश 2 डैश। नेमिंग बहुत ध्यान से करना है, तो पूरा इलिप्स गलत हो जाएगा। तो ये बन गया। अब आप क्या करोगे, जैसे ये 1 2 मिला तो ये 1 और 2 वाले पॉइंट को c से जोड़ दोगे, और यहां भी ये 1 डैश और 2 डैश को c से जोड़ दोगे, जुड़ जाएगा। C से मैंने क्या किया, 1 और 2 को जोड़ दिया, और C से 1 डैश और 2 डैश को जोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, D से 1 को जोड़ते हुए, D से 1 को जोड़ते हुए C1 वाली लाइन पे मिला दूंगा, ये पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली D से 2 को जोड़ते हुए
C2 वाले लाइन पे मिला दूंगा, दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। D से 2 डैश को जोड़ते हुए C2 डैश वाले लाइन पे मिला दूंगा, D से 1 डैश को जोड़ते हुए C1 डैश वाले लाइन पे मिला दूंगा। ये मिल गया, ये पॉइंट मिल गया मुझे। सिमिलरली अब क्या करूंगा देखिए, सिमिलरली अब ये प्रोसेस को उल्टा करना है। यहां देखिए आपको ऊपर के पॉइंट्स मिल गए एलिप्स के, अब नीचे के पॉइंट्स क्या करूंगा देखो, D से 1 को और D से 2 को, सिमिलरली D से 2 डैश को, D से 1 डैश को जोड़ दूंगा। फिर C पे रखूंगा, C से 1 को जोड़ते हुए D1 वाले लाइन पे पॉइंट मिला दूंगा, C से 2 को जोड़ते हुए D2 वाले लाइन पे मिला दूंगा, फिर C से 2 डैश को जोड़ते हुए D2 डैश वाले लाइन पे मिला दूंगा, C से 1 डैश को जोड़ते हुए D1 डैश वाले लाइन पे मिला दूंगा। जस्ट उल्टा कर दिए तो मिल गया पॉइंट्स। अब ये सारे पॉइंट्स जो आपको मिले हैं पहले आप डॉटेड बना लीजिएगा, आपके दिमाग में रहना चाहिए एलिप्स ऐसा बनना चाहिए, तो ये आपके फिगर आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ऐसे करो, सारे पॉइंट्स को जोड़ते हो पहले, हल्के लाइन से बना लो, डॉटेड लाइन से। ठीक, देखिए बन गया। बनने के बाद इसको डार्क करेंगे आप। क्लियर, ये बन गया आपका एलिप्स। तो ये होता है ऑब्लॉन्ग मेथड। देखिए कितना सिंपल, सेम लॉजिक वहां फॉलो करना है आपको। बस वहां पे क्या होगा, रेक्टेंगल था तो ये 90 डिग्री एंगल था दोनों के बीच में, अब वो एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, दैट्स इट। बाकी एज इट इज वही करना है। अब क्या है कि आपका अगर 60 डिग्री आप एंगल मानते हैं तो आपका पैरेललोग्राम जो है ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा ये स्टेप है, तो उसमें आपका जो एलिप्स है वो ऐसा बनेगा, ऐसा टेढ़ा हो जाएगा। और अगर ये यही पैरेललोग्राम आपको 120 डिग्री एंगल दिया होता तो पैरेललोग्राम ऐसा बन जाता, तो उस समय आपका एलिप्स ऐसा बन जाता। तो वो अपने आप होगा, आपको बदल नहीं करना, आपको बस वो ध्यान देना है कि एंगल कितना दिया है। ठीक है, देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे। हमको वही लॉजिक पता है, जितना मेजर एक्सिस होगा उतना ही लेंथ होगा, जितना माइनर एक्सिस होगा उतना ही ब्रेड्थ होगा। तो 150 और 100 दिया, बना लेते हैं। तो यहां से ये 150 मान लिया, एंगल ले लिया 60 डिग्री और 10 सेंटीमीटर बना लिया। फिर यहां से भी 60 डिग्री ले लिया, 10 सेंटीमीटर बना लिया, ये जोड़ दिया दोनों। क्लियर, इसका मिड पॉइंट निकाला, ऊपर वाले का मिड पॉइंट से जोड़ दिया, इसका मिड पॉइंट निकाला, बाजू वाले का मिड पॉइंट से जोड़ दिया। तो देखिए मेरा हो गया मेजर एक्सिस ए बी, और ये हो गया सी ए डी, और ये पॉइंट आ गया मेरा ओ। फिर वैसे करूंगा मैं इसको 3 इक्वल पार्ट्स, इसको भी नाम दे देते हैं ई एफ जी एच, इसको भी 3 इक्वल पार्ट्स, इसको भी 3 इक्वल पार्ट्स, ये भी 3, ये भी 3, जैसा अपन ने नेमिंग किया था एग्जैक्टली वैसे सब चीजें थी। 1 2 1 2 1 2 1 डैश 2 डैश 1 डैश 2 डैश 1 डैश 2 डैश। सेम करना है, सी से 2 को, सी से 1 को, सी से 2 डैश को, सी से 1 डैश को, फिर डी से 1 को जोड़ते हुए C1 वाले लाइन पे, D से 2 को जोड़ते हुए C2 वाले लाइन पे, D से 2 डैश को जोड़ते हुए C2 डैश वाले लाइन पे, D से 1 डैश को जोड़ते हुए C1 डैश वाले लाइन पे। ये बन गया। सिमिलरली अब इसका उल्टा करोगे तो अब D से 1 को जोड़ दोगे, D से 2 को जोड़ दोगे, D से 2 डैश को जोड़ दोगे, D से 1 डैश को जोड़ दोगे, फिर C से 1 को जोड़ते हुए D1 वाले लाइन पे, C से 2 को जोड़ते हुए D2 वाले लाइन पे, C से 2 डैश को जोड़ते हुए D2 डैश वाली लाइन पे, C से 1 डैश को जोड़ते हुए D1 डैश वाली लाइन पे। बन गया आपका, पॉइंट्स मिल गया। अब आप ऐसे इरेज बनाओ, पॉइंट्स को जोड़ते हुए, पहले डॉटेड लाइन से जोड़ दिया, अब डार्क कर दिया। ठीक है, ये देखिए तो आपका इलिप्स देखिए थोड़ा टेढ़ा बन गया।
बना नहीं टेढ़ा, ठीक है। देखिए स्टेप का बन गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, टिल्ट हो गया, तो अपने आप हो रहा है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आप बस पॉइंट्स को जोड़ते जाओ, बस जो ये पॉइंट्स आए दैट्स इट। पहले ध्यान रखना डॉटेड लाइन से एकदम हल्का हल्का जोड़ना, फिर उसको डार्क करना, तो फ्री हैंड आप इजीली बना पाओगे, फ्रेंच कर्व का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब यही चीज अगर आप इंक्लूडेड एंगल मान लीजिए 120 डिग्री दिया हुआ, यहाँ से एंगल मेरा कितना था 60 डिग्री, अगर मान लीजिए 120 दिया तो क्या करते, ऐसा बन जाता, 15 सेंटीमीटर बनाते, एंगल ले लेते 120 डिग्री, उसमें 10 सेंटीमीटर बना देते, यहाँ से भी 120 डिग्री 10 सेंटीमीटर बना देते, हो गया, जुड़ गया, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को जोड़ दिया, यहाँ भी मिड पॉइंट से मिड पॉइंट जोड़ दिए, तो आपका पैरेललोग्राम ऐसा बन जाता, ठीक है कि नहीं। सेम ऐसे बनाएगा एग्जैक्टली, ये 3 पार्ट्स हमने डिवाइड कर लिए, 3 पार्ट्स, यहाँ पे 3 पार्ट्स, ये भी 3 पार्ट्स, सेम वैसे नेमिंग कर दो 1 2, यहाँ भी 1 2 हो जाएगा, यहाँ भी 1 2 हो जाएगा, ये 1 डैश 2 डैश, यहाँ भी 1 डैश 2 डैश, यहाँ भी 1 डैश 2 डैश, वही सेम लॉजिक, सी से यहाँ और यहाँ जोड़ोगे, सी से यहाँ और यहाँ जोड़ोगे, फिर डी से 2 को जोड़ते हुए D2 डैश वाली लाइन, D2 वाली लाइन पे, D से 1 को जोड़ते हुए D1 वाली लाइन, यहाँ भी 2 डैश से 2 डैश वाले पे, 1 डैश से 1 डैश वाले पे, ये बन गया। अब इसी का उल्टा करोगे नीचे, तब क्या हो जाएगा, ये D से इधर 1 को और D से इधर 2 को जोड़ दिया, 2 डैश को और 1 डैश को जोड़ दिया, फिर C से 1 को जोड़ दिया D1 पे, C से 2 को ले जाकर जोड़ दिया D2 पे, C से 2 डैश को ले जाकर जोड़ दिया D2 डैश पे, और C से 1 डैश को ले जाकर जोड़ दिया C1 डैश पे। पॉइंट्स मिल गया आपको। अब ये पॉइंट्स को लेकर पहले आप डॉटेड लाइन से आपने बना लिया डॉटेड लाइन से, उसको डार्क कर दो, डार्क कर दिया, सेम मेथड है। अब ये इस साइड टिल्ट होकर बन गया, क्लियर। तो ऐसा लॉजिक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। ऑब्लॉन्ग मेथड भी कैसा बनाना है, देखिए एक रेक्टेंगल मेथड है और एक पैरेललोग्राम मेथड है। रेक्टेंगल मेथड में 90 डिग्री रहता है बीच का एंगल, और पैरेललोग्राम मेथड में या तो 60 डिग्री होगा या तो 120 डिग्री होगा। दिस एंगल इज, रेक्टेंगल मेथड में क्या है, 90 डिग्री है, और पैरेललोग्राम में या तो 60 होगा एंड 120 डिग्री। दिस एंगल इज 120 डिग्री, ये 60 डिग्री वाला पैरेललोग्राम, 120 डिग्री वाला, एकदम सेम मेथड, ठीक है। मेरे ख्याल से गाइस ये समझ में आ गया होगा। इसको आप बनाइए पूरा, इलिप्स के ये 4 ही मेथड है बस। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पैराबोला और हाइपरबोला के जितने भी डिफरेंट मेथड्स को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स को बना लेंगे, तो कोनिक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है गाइस। उसके बाद बचेगा आपका क्या, साइक्लॉइड और इनवॉल्यूट, ठीक है गाइस। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, थैंक यू।